Because I remember times when I have really wasted my times and days in my time and my days. और कई बार मैं सोचता हूँ, याद करता हूँ कैसे मैंने अपने पुराने समय को कैसे बर्बाद किया। And it is really something which God helped me and to understand this after a long period of time, and where I'm still learning on this area, and God is teaching me too. और एक लंबे समय के बाद परमेश्वर ने मुझे मदद की इस बात को सीखने के लिए, और अब भी मैं इस बात को सीख रहा हूँ। That's why even about this ant, it is written, it is quoted in 2 chapters in the Old Testament. और पुराने नियम में इस चींटी के बारे में 2 अध्याय में इसके बारे संबंध में लिखा गया है। It's written in Proverbs chapter 6 and in Proverbs chapter 30. और नीति वचन 6 अध्याय और 13 अध्याय के अंदर लिखा गया है। You know what exactly God is telling is I should not be lazy, but I should be wise and doing my work in a proper way. और ये वचन हमको सिखाता है कि हमें आलसी नहीं, लेकिन सारी चीजें एक सही रीति से करना है, Doing the will of God. परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए। That's why Bible says go to the ant in Proverbs chapter 6 verse 6. और नीति वचन 6 अध्याय के 6 वचन में लिखा है, इसलिए हमें चींटी के पास जाकर बुद्धिमान बनने के लिए कहा गया है। It says go to the ants and observe its ways and be wise, it says. और वहाँ लिखा है चींटियों के पास जाओ, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। And not to be sluggish, not to be lazy. और वहाँ पर में आलसी नहीं होना है। Something about this ant, if I have read about, is it is so small and so tiny. और चींटी के बारे में मैंने कुछ ऐसा पढ़ा कि वो इतना छोटी वो होती है। Being so small, one good thing is it can carry weight 10 times more than its body weight. It is said like that. और ऐसा कहा जाता है कि वो इतनी छोटी है, लेकिन उससे 10 गुना बढ़कर जो वजन जो होता है, बोझ को वो उठा सकती है। Is it something amazing that we can learn about it? और ये कितनी अद्भुत बात है कि ये हम सीख सकते हैं। It's hardworking, strong, and not lazy. और बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाली, बहुत ही मजबूत वो है और आलसी नहीं है। Another good quality about this ant is ants know that they can accomplish more by working together than by working alone. और दूसरी एक चीज जो हम सीख सकते हैं कि ये चींटियां जो ये बात को समझती है अच्छे से कि अकेले काम करने से बेहतर वो एक साथ सब मिलकर काम करने से और अधिक उसमें प्राप्त कर सकते हैं। There is a unity among them when they work together and they accomplish work. और वो जब साथ में काम करते तो उसमें एकता होती है और अधिक काम को वो सफलतापूर्वक कर पाते हैं। This is what I need to learn, and we all need to learn about to work together, and accomplish good things in the Lord. और यही मुझे और हम सबों को सीखने की जरूरत है कि हम सब साथ में मिलके और अधिक कार्य को बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं। That is what God wants to teach us today. और यही परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है। In Proverbs chapter 30 verse 25, we read it like this, that ants are very small creature and they are very little. They don't have strength. They are not so strong. और नीति वचन 30 अध्याय के 25 वचन में लिखा है कि चींटियां जो है वो निर्बल जाति है, वो इतनी मजबूत नहीं होते हैं। They are weak. वो निर्बल है। But still, they prepare their food for summer. और वहाँ लिखा है 25 वचन में कि धूप काल में वे अपनी भोजन वस्तु बटोरते हैं। In other words, when there is nothing, they have reserved themselves. They have reserved for themselves. और इसका मतलब कि जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो उसके लिए उसने पहले से ही सारी चीजें बटोर कर रखी होती है। Imagine the times and the money and the time and money what we have spent waste and which we have not reserved, which could have helped us in the time of need, which I can or we can think about. और सोच के देखिए कि हमने भूतकाल में कैसे हमारे समय और पैसों को कैसे व्यतीत किया है। शायद हम उसको बेहतर रीति से बटोर सकते थे या उसको संभाल के रख सकते थे हमारे भविष्य के लिए। Because time once is gone, we cannot get it back. It is gone, is gone. और समय एक बार जब चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता है। I cannot pull my tomorrow again and try to accomplish things. I have to again start back and try to set things right and do things in a proper way. जो मेरा बीता हुआ कल है उसको मैं वापस खींचकर आज नहीं ला सकता और उसको मैं सीधा या सही करने की कोशिश उसको नहीं कर सकता। And one more thing about this ant, what I learned about is, there are 5 things which I learned. और 5 चीजें हैं जो मैंने इस चींटी के बारे में सीखा। And I would take that 5 things to the I would connect it to my 5 fingers. और ये 5 चीजों को मैं अपनी 5 उंगलियों के साथ में इसकी तुलना करूंगा। The 5 things is, first one is discipline.
पहला जो है, पहली चीज जो है वो अनुशासित होना, They are disciplined. अनुशासन, Second is they have good planning. और दूसरा है कि एक अच्छी योजना उनके पास होती है, Third is they have good, they set in order things. और तीसरी चीज कि वो सारी चीजों को अच्छे क्रम में रखते हैं। Fourth is they have a good team spirit, teamwork. चौथा, उनके पास एक एक झुंड में काम करने की एक आत्मा या भावना होती है। And five is, they are self-sacrifice. और पांचवा जो है वो अपने स्वयं से बलिदान करके वो आगे बढ़ती है। That's how they come together like this. और इस तरह से वो साथ में काम करते हैं। When I think about these five things, I really connect it to my life. और जब इन 5 चीजों को मैं याद करता हूं तो अपने जीवन को यहाँ पर मैं जोड़ पाता हूं। When I say discipline, do I love to discipline myself in my spiritual walk daily? और मैं इस बात को देखता हूं कि क्या मैं अपने आत्मिक प्रतिदिन के जीवन के अंदर, मेरे आत्मिक जीवन में अपने आप को अनुशासित कर पाता हूं। I need to ask this every day. मुझे प्रतिदिन अपने आप को ये पूछना है। And when it comes to planning, do I have proper plan of growth in my spiritual walk, properly? और मेरे प्रतिदिन के जीवन के अंदर, आत्मिक जीवन के अंदर वृद्धि के लिए क्या मेरे पास एक सही योजना है? And when it comes to order, have I kept things in order or setting my priorities better? और सारी चीज को क्रम में रखने के संबंध में क्या मैंने अपने जीवन के अंदर सारी चीजों को क्रम में या प्राथमिकताओं को एक क्रम में रखा हुआ है? Order is something setting things or prioritizing things properly. और इसका मतलब कि चीजों को सही प्राथमिकता के क्रम में लेकर आना। And teamwork, when I think about teamwork, do I have the attitude of working together or want to accomplish alone or by myself? और झुंड में काम करने की भावना के साथ मैं अपने आप को देख सकता हूँ, क्या मैं अकेले काम करना चाहता हूँ या फिर एक झुंड के साथ मिलकर काम करने की भावना मेरे अंदर है। And when about self-sacrifice, am I ready to bear the cross daily or die to? और दूसरा है कि बलिदान के बारे में कि क्या मैं प्रतिदिन अपने आप का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। These are the things which I really thought about when I saw these 5 things, and I was just thinking like how I can work on this area in my life more. और यही मैं अपने जीवन में देख रहा था कि इन पांचों क्षेत्रों के अंदर कैसे मैं और अधिक अपने जीवन पर कार्य कर सकता हूँ। You can put on that slide which I sent you. Yes. See, ant is something which I've got a slide which I want to picturize how it does its work. और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस चित्र के द्वारा कि कैसे एक चींटी कार्य करती है। You see over there in the first picture, ant is carrying a big leaf which is bigger than its size. और पहला चित्र जब हम देखते हैं कि एक चींटी जो है उसके कद से बढ़कर जो पत्ता जो है वो लेकर उठाकर वो चल रही है। Many of the times we think it's very impossible, it's not possible. We can look at that and we can take that inspiration to ourselves, that bigger things we can achieve in our life. और कई बार हमें लगता है कि बहुत असंभव है, बड़ा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हमको देखना, याद करना है कि हम बड़ी चीजों को भी अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। And the second slide we see there is a gap and there are both the sides there are ants and the other side wants to cross but they cannot cross. हम देखते हैं कि दो चीजें, एक चींटी एक साइड पर है, दूसरे साइड पर वो एक यहाँ से वहां क्रॉस करना चाहते बट वो अकेले नहीं कर पाते हैं। But then we see they are stretching themselves together as a team and then they are building a bridge in the third slide. और यहाँ पर आगे देखते हैं तीसरे स्लाइड के अंदर कि वहां पर वो अपने आप को खींचकर एक ब्रिज के जैसा बनाते हैं जिससे कि वो इससे पार निकल सके। And in the and on the fourth slide we see that they have made it and they have achieved it. और चौथी स्लाइड में हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया और उसने उसको पा लिया ऐसा करने में। This is what we need to get into ourselves and we need to learn from this ant to become stronger and to build in our team spirit. और यही हमें इन चींटियों से सीखना है कि हमें और मजबूत होना है, वो झुंड की भावना हमारे अंदर लेकर आना है। Not to feel that we are small. Even being small, we can still accomplish good things. That's what the promise of God is to us. और यही परमेश्वर का वायदा हमारे लिए कि हमें अपने आप के बारे में कभी छोटा नहीं सोचना है, हम फिर भी उसमें मजबूत है। To this example, I got a very good person who could really illustrate this particular thing in this particular thing in his life. और एक व्यक्ति जो मुझे मिला जो बहुत ही अपने जीवन से अच्छी तरह से इस उदाहरण को वो दिखा सकता है।
It was none other than Joseph. और वो था यूसुफ। You know, in Genesis chapter 41, we read about, about Joseph. उत्पत्ति 41 अध्याय के अंदर हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। And there in 41 verse 29 onwards, there Joseph is interpreting a dream of Pharaoh. और 29 वचन से आगे हम देखते हैं कि यूसुफ यहाँ पे फिरौन राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है। And the dream was, it is that there will be 7 years of plenty, and then there would be 7 years of famine. और वहाँ वो कहता है कि 7 वर्ष जो होगी बहुतायत की उपज होगी, 7 वर्ष जो होंगे अकाल के वर्ष होंगे। And in the last part of verse 31, it is written that it will be very grievous, very uncomfortable, and it will be really a very big loss. और यहाँ पर 31 वचन के अंत में लिखा है कि अकाल जो होगा अत्यंत भयानक होगा, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर नुकसान होगा। And in Genesis 41, we read that Pharaoh gives charge to Joseph, and he places him authority over all the land of Egypt. और हम देखते हैं उसी अध्याय के अंदर कि फिरौन राजा यूसुफ को अधिकारी का पद देता है और सारे देश के ऊपर, सारे मिस्र के ऊपर उसको एक अधिकार देकर खड़ा करता है। That we read in Genesis chapter 41. और उत्पत्ति 41 उसके 41 अध्याय के अंदर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। And one good thing which I learned about Joseph was, when he took up the charge, he was just 30 years of old when he took up that charge of authority. और जब मैं एक चीज बहुत पसंद करता हूँ यूसुफ के बारे में, जब उसने उस अधिकार को लिया उस सारे देश के ऊपर, तो वो केवल 30 साल का था। It is in Genesis 41:46. और वहां पर 46 में 46 वचन में लिखा है उसी अध्याय के। And one great thing is, he did not just plan for 7 years of famine. यहाँ पर लिखा है कि अकाल के समय जो है उसके संबंध में उसने 7 साल के बारे में योजना नहीं बनाई। He planned for 14 years. लेकिन उसने 14 साल की एक योजना बनाई। This is what I need to learn about, how he could plan for 14 years and being at the age of 30, at the age of 30. और इसी प्रकार हमें 30 साल की उम्र में इस प्रकार की योजना बनाने आगे की 14 साल के संबंध में। This is something amazing which God really gave him, that wisdom and understanding, like the ant, that as the ant could plan for summer, so he could plan for that 7 years of famine, which was not very less. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक चींटी के जीवन से कैसे वो धूप काल में अपने लिए वो बटोर के रखती है, वैसे ही 7 साल के अकाल के लिए पहले ही वो बटोर के चीजें रखता है। And then we see in verse 47 onwards that we see that there is the plenty, whatever they produced, they started storing and keeping it. और उसके आगे वचन में हम पढ़ते हैं कि जैसे कि 47 वचन में कि बहुत जब भूमि में बहुतायत से होने लगी तो उसको बटोर के वो लोग उसको नगर में रखता गया। This is something like they were eating also and they were saving also. This is what I need to learn. Like I have to save and I have to keep. I do not know about my tomorrow. और यही मुझे सीखने की जरूरत है कि वो भोजन के खाते भी थे, अपने आप का गुजरान करते थे, उसके साथ सेव भी करते थे, बटोरते थे। वैसे मुझे भी करना है अपने जीवन में। It's like like when we are going through this pandemic situation, we know what is the scarcity we are going through and what are things happening, and the saving really helps when we have it. और इस महामारी के समय में हम जानते हैं कि कितनी सारी कमी घटी से शायद हमको गुजरना पड़ सकता है। ये बटोर के रखना या सेविंग चीजों का करना, ये हमको ये मदद कर सकता है। This is something which God only helps us, and God only can give that wisdom and understanding like the ant. परमेश्वर ही हमें ये बुद्धि दे सकता है, ज्ञान दे सकता है और मदद कर सकता है इसके लिए। Later on in chapter 45, we read about his brothers. He is getting reconciled with his brothers. और उत्पत्ति 45 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि कैसे वो अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप करता है यूसुफ। And we read about him, when he gets reconciled, he tells in 45 verse 5, he says, God sent me ahead of you to preserve life. और यहाँ पर 45 उत्पत्ति उसके 5 वचन में यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, तुम मत रो मत पछताओ, क्योंकि उदास मत हो, परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। He never thought about what had happened in the past, what their brothers did to him. That he didn't at all. He didn't even get angry about that at all. But then he only said, God sent me ahead of you to preserve life. पिछली बातों को बिल्कुल यहाँ पर स्मरण नहीं करता है, ना उसके भाइयों ने कैसे उसके साथ क्या क्या किया।
ये सारी चीजें याद नहीं करता है, लेकिन केवल इतना कहता है कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। This was something, a self-sacrifice which Joseph underwent through his life, being in the prison and going through all that frustration. And at the end, he could rejoice and he could also help the family also. और हम देखते कि कैसे उस बंदी गृह से, परेशानियों से, बहुत संकट से यूसुफ गुजरा, और अंत में देखते उसे आनंद करते हुए और अपने परिवार की भी सहायता करते हुए। I also need to adopt that sort of things in my life where I could really help and not think about the past or get angry or annoyed about certain things, but rather, say that God sent me ahead of you to preserve life. और इसी प्रकार मुझे भी अपने जीवन में भूतकाल की सारी चीजों के बारे में मुझे बदले की भावना या क्रोध से, गुस्से से नहीं भरना है, लेकिन इस बात को यूसुफ के समान कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए मुझे आगे भेज दिया है। I need to be like the wise man, as it is written in Matthew chapter 7 verse 24. और मत्ती 7:24 के अंदर जो बुद्धिमान पुरुष के बारे में लिखा, उसके समान मुझे बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। A wise man who builds his house on the rock. और एक बुद्धिमान मनुष्य जो एक चट्टान के ऊपर अपने घर को बनाता है। And that house, when he's building, it is on a good foundation, on good doctrine, on good things, and on a good fellowship. You can name it, etc. और हम देख सकते हैं कि अच्छा, ये जो नींव के ऊपर वो बनाता है, जो हो सकता है कि अच्छी एक संगति है, एक अच्छा एक सिद्धांत हो सकते हैं उसके ऊपर, या और भी आदि चीजें हो सकती है। And no, I should not be like the foolish woman who did not carry oil with them in the flask in Matthew chapter 25 verse from verse 3 onwards we read. और मत्ती 25 अध्याय के 3 वचन के आगे, जो मूर्ख कुंवारी के समान हमको नहीं होना है कि जो अपने कुप्पी के अंदर तेल नहीं लेकर चल रहे थे। No, not prepared and not at all, just standing gazing at one another and asking, going out at the time when the bridegroom is coming, going out to buy oil. और वो तैयार नहीं थे, एक दूसरे को केवल देखते हुए वहां पर खड़े थे कि जब दूल्हा आएगा तब शायद हम तेल खरीदने जाएंगे। But to be like the wise, woman who had their oil reserved with them and they were ready to meet the bridegroom. लेकिन उस बुद्धिमान कुंवारी के समय जो उनकी कुप्पी में पहले से ही वो तेल रखा हुआ था, अपने दुल्हे को मिलने के लिए वे तैयार थी। Always be wise like the ants, prepared for the summer, and be strong enough. That is what God wants us to be like that. और परमेश्वर चाहते कि उस चींटी के समान हम बुद्धिमान बने, ताकि धूप काल में हम बटोर सके आगे के जीवन के लिए, और बुद्धिमान बन सके और मजबूत हो सके। Not wise in our own understanding. और अपने स्वयं की दृष्टि के अंदर हम बुद्धिमान न बने। Finally, let us learn and be spiritually wise with all godly understanding. और आइए हम आत्मिक रीति से भी बुद्धिमान बने, हर प्रकार की ईश्वरीय बुद्धि जो हमारे लिए उपलब्ध है उसके द्वारा। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम से आमीन। ओके, धन्यवाद देना चाहूँगा ये टाइम के लिए। जो चीज़ परमेश्वर ने मुझे सिखाई है पिछले दिनों में, उसमें से एक छोटी सी चीज़ आपसे बांटना चाहूँगा। एक सिंसियरिटी के साथ ये पाप से छूटने के लिए जो हमारे पास जो वायदे हैं, जैसे कि हम कई बार देखे हैं कि मैथ्यू 1 और 21 के अंदर कि वहाँ पे एक प्रॉमिस है कि जहाँ पे प्रभु यीशु का जो मतलब नाम का मतलब जो है वो हमें पाप से छुड़ाना होता है। तो मैंने कई बार उसको क्लेम किया कि यीशु मुझे जो पाप है उसमें से मुझे छुड़ाए, लेकिन अभी तक बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि मैं फिर भी वो पाप में हूँ। फिर भी परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ बताई कि वायदे से पहले उसकी प्रक्रिया होती है, मतलब कि उसका प्रोसेस होता है। प्रॉमिस से पहले उसका प्रोसेस होता है। तो जो चीज़, जैसे कि मैं पाप से छूटना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे वो पाप का रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन से एरिया में मैं पापी हूँ, कि जहाँ पे मुझे रियलाइज़, मुझे कन्विंस होके मुझे फॉरगिवनेस चाहिए। तो वो चीज़ परमेश्वर मुझे बताना चाहते थे। और वो एक ही जगह है जहाँ पे हम हमारे जो पाप है वो हम रियलाइज़ कर सकते हैं, वो है परमेश्वर का प्रेजेंस में, उनकी फेलोशिप में, उनकी संगति में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 कोरिन्थियंस उसका 14 चैप्टर के अंदर 24-25 के अंदर ये बात लिखी है
कि अगर कोई भी बंदा वहां पे आता है और हमारी जो चर्च के अंदर अगर वो बैठता है और देखता है, तो वहां पे वो प्रोफेसी सुनता है, लेकिन अल्टीमेटली वो क्लेम ये करता है कि यहाँ पे परमेश्वर की मतलब गॉड का प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस उसे रियलाइज करवाता है कि वो सिनर है। तो वो एक जगह है जहाँ पे मुझे पता चलता है कि जब मैं परमेश्वर की हजूरी में रहता हूँ, उसकी उनकी संगति में जब रहता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि हाँ, मैं एक सिनर हूँ, और तभी वो मुझे पाप से छुड़ा सकते हैं। ऐसे ही क्लेम करने से, ऐसे प्रोमिसेस को क्लेम करने से मैं नहीं छूट पाऊंगा। मुझे वो रियलाइज होना, मुझे उनकी संगति में रहना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैंने काफी बार मेरे लाइफ में फेस किया है, और वो ये है, जैसे कि हमने यशायाह नबी को देखा कि जब उन्होंने परमेश्वर को देखा, तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो अशुद्ध होठों के इंसान है, और फिर उनके बाद उनका सॉल्यूशन, उनको वो रेमेडीज मिली कि उनको अच्छा किया गया, उनके उनके जो पाप थे वो क्षमा किए गए। फिर उन्होंने परमेश्वर का आवाज सुना, तो वहां पे उन्होंने परमेश्वर को देखा। तो हम भी जब उनकी प्रेजेंस में परमेश्वर को देखते हैं, तभी हमारे जो पाप है, हमारे जो गुनाह है, उसकी क्षमा होती है। और हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर का कोई भी जन परमेश्वर को देख नहीं सकता, अगर देख लिया तो वो मर जाता है। लेकिन जब हम अपने आप में मर जाते हैं, तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं, क्योंकि मरा हुआ इंसान नहीं मर सकता। तो ये चीज मुझे प्रभु बताता है, क्योंकि मैं अभी जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी मेरा सेल्फ जिंदा है, इसीलिए मैं मर सकता हूँ, इसीलिए मुझे मरना है। अगर मेरा सेल्फ मर गया तो मैं परमेश्वर को देख सकता हूँ। तो ये चीज परमेश्वर मुझे बताती है कि क्यों मैं पाप से छूट नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी सेल्फ जो है वो अभी जिंदा है। तो इसीलिए प्रभु हमसे, मेरे से चाहता है कि मैं जो सेल्फ जो मेरे अंदर है उसमें मैं मरूं, और जब मैं मर जाऊंगा तब मैं परमेश्वर को देख पाऊंगा, और तब मैं रियलाइज कर पाऊंगा मेरे जो बाकी के जो सीन्स है, जो एरियाज जो अभी तक पेंडिंग है, तो वही सब एरियाज के अंदर परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे, और ये प्रोमिसेस जो है वो तभी, जो वायदे जो है वो तभी फुलफिल हो पाएंगे। थैंक यू। Yeah, I just thank God for what I am learning. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो बात मैं सीख रहा हूँ। As we heard, there's so many things to learn from ant, as brother said this morning. और आज जैसे भाई ने आज सुबह बताया कि बहुत सारी चीजें हम चींटी से सीख सकते हैं। There are two things basically I want to share what I'm learning, try to practice. और दो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ जो इन दिनों में मैं सीख रहा हूँ। Brother said regarding ants are hard working but not lazy. और जैसे भाई ने बताया कि चींटियां जो होती है वो बहुत ही कड़ा परिश्रम करने वाली होती, आलसी नहीं होती। Being lazy is a challenge to me. I have to learn to be diligent in my own life. और ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, कई बार आलसी हो जाते हैं, लेकिन मुझे कई बार अपने जीवन के अंदर परिश्रम करने वाला, कड़ी मेहनत करने वाला बनना है। One verse we can read in Proverbs chapter 13 verse 4. और नीति वचन 13:4 के अंदर एक वचन को हम पढ़ सकते हैं। Can you read, brother? वहाँ लिखा है, नीति वचन 13 अध्याय उसका 4 वचन, आलसी का प्राण लालसा तो करता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। Yes, we are here see that God wants me to be diligent, not to be lazy in my life. और परमेश्वर यहाँ पर चाहता है कि मैं अपने जीवन के अंदर लालसी ना हो, लेकिन एक कामकाजी या कड़ी परिश्रम करने वाला मैं बनूं। Laziness is like sin. He hates sin in me, though he loves me. और एक आलस जो है एक पाप के समान है, वो आलस से प्रेम, वो घृणा करता है, लेकिन वो मुझसे प्रेम करता है। We all know that God destroyed Sodom. और हम सब जानते हैं कि सदोम जो है परमेश्वर ने उसका नाश किया। And God said a few reasons for he destroyed the Sodom. और परमेश्वर ने उसका कारण भी दिया। He gave few reasons why he destroyed the Sodom. और परमेश्वर ने कुछ कारणों को दिया कि किन कारणों की वजह से उसने सदोम का नाश किया। One of the reason is they were very lazy. और एक कारण उसमें से ये था कि वो बहुत आलसी थे। We can read in book of Ezekiel chapter 16 verse 49. एजेकियल Chapter 16 verse 49. उसका 16 अध्याय, एजेकियल 16 अध्याय उसका 49. देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था
कि वह अपनी पुत्रियों से घमंड करती, पेट भर के खाती और सुख चैन से रहती और दीन दरिद्र को न संभालती थी। Yes, here one of the translation it says one of the reason is laziness in this verse. और एक अनुवाद के अंदर यहाँ पर एक उसमें से एक कारण जो था वो आलस या आलसी था। God hates laziness in his children. He wants us to be diligent. परमेश्वर नहीं चाहता अपने बच्चों के अंदर आलसी रहे, लेकिन वो मेहनती या कामकाजी बने। Even when we all know that one of the parables Jesus said in Matthew 25, और मत्ती 25 के अंदर में एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा, in that he gave 5 talents to master gave 5 talents to one of his servant and 2 talents to another servant. और वहां पर जो स्वामी है वहां पर किसी को एक दास को 5 तालन देता है, दूसरे को 2 तालन देता है। And both of them they got a commendation from their master saying that well done faithful servants. और यहाँ पर दोनों ही दास जो है वो स्वामी के द्वारा उनको कहा जाता है कि धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, किस प्रकार से उनकी सराहना होती है। But third person received 1 talent. He did nothing about it. He was very lazy. लेकिन तीसरा व्यक्ति था, उसको एक ही तालन दिया गया था, वो बहुत ही आलसी था। वो That lazy person, Jesus calls him like that. He is a lazy and wicked. और यहाँ पर यीशु मसीह उससे कहता है कि वो आलसी और बुरा या दुष्ट व्यक्ति वो था। We can read Matthew 25 and 26, verse 26. और मत्ती 25 के 26 में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। He calls lazy person as a wicked person, and also later on he calls him as a worthless servant. और यहाँ पर जो आलसी है उसको वो दुष्ट कहता है, उसके आगे वो कहता है कि वो निकम्मा या किसी भी काम का नहीं, इस प्रकार के व्यक्ति वो कहता है। The master punishes him very badly. और वहाँ पर स्वामी जो है उसको बहुत ही गंभीर रीति से उसको दंड देता है। In all things, Jesus tried to say that his disciples, his children, he want me to be diligent, not to be lazy in my life. और यही इन सारी बातों से परमेश्वर कहना चाहता है कि उसके संतान, उसके बच्चे या उसके चेले होने के नाते वो चाहता है कि हम आलसी न बनूं, लेकिन मेहनती या कामकाजी बनूं। In Jeremiah chapter 48 verse 10 it says, do the work of the Lord diligently, not negligently. और यिर्मयाह उसका 48 अध्याय उसका 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, 48 यिर्मयाह 48 verse 10. और वहाँ पे लिखा है कि श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। Yes, God hates laziness in his servants, in his people who does his work. और जो लोग परमेश्वर का कार्य करते, जो उसके दास है, उनके अंदर परमेश्वर आलस को घृणा करता है या नफरत करता है। Another thing is that as we learn from aunt is it's saves works in summer and saves for the winter or any season. और हम देखते हैं कि एक और बात चींटी के जीवन से कि वो धूप काल में जो है वो बटोरती है और आगे के समय के लिए बचा के रखती है। One verse we can read in Proverbs chapter 20 verse 4. और नीति वचन 20:4 में हम पढ़ते हैं, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। We learn from ant is it does not yearn for the day bread. Also, it saves for the future in coming days. Though it's live short living, yet it has a wisdom to save. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चींटी जो है वो इतना छोटा वो प्राणी या छोटा वो छोटी है, लेकिन वो इतना सब कुछ कि आने वाले समय के लिए वो अपने आप के बचा के या बटोर के रखती है। It knows rainy season, summer season come. I can't work. I have to save now. तो बरसात के बारे में जानती है कि तब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, अभी मुझे सारी चीजें बचा के रखना है, वो बुद्धि उसमें होती है। Whatever we learn daily or monthly, God is not giving for only today. He is giving advance income for future expenditure. और जो भी हम प्रतिदिन या एक महीने के द्वारा जो आमदनी हम जो तनख्वाह कमाते हैं वो केवल हमारे उसी महीने या उसी दिन के लिए नहीं, लेकिन हमारे आने वाले जो खर्चे हैं जो उसके लिए भी हमको बचा के रखना है। He knows we will come out. We may need in some emergency, maybe due to health issues. We may need a medical emergency. और हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी, स्वास्थ्य के बारे में कभी कोई बीमारी, ऐसी कोई हालात आ सकती है जिसके लिए हमें इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। Children education, even our retirement. और बच्चों का हो सकता है पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट हो। God desires us to be saving, not to be spendthrift. और परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी तरह से उसको हम खर्च ना कर दे, लेकिन उसमें से सेव करें या उसमें से हम बचा के रखें।
We had very good example from Joseph's life, though it was 7 years, plenty of time, he saved for our next 70 years. और हमने बहुत ही उत्तम उदाहरण देखा यूसुफ के जीवन से। 7 काल जो बहुतायत के 7 साल थे, उसके अंदर उसने आने वाले 7 साल जो अकाल के थे, उसके लिए उसने सारी चीजें तैयार या उसको बचा के रखा। Even Jesus also taught his disciple after feeding 5,000, 4,000, we can see him not to waste anything. He told them to collect all those things. और हम यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी यही सिखाते हुए देखते, जब उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, उस रोटी और खाना खिलाने के बाद जो चीजें बच गई थी, यीशु ने कहा कि उनको तुम इकट्ठा करो या बटोर लो। God don't want me to waste anything, rather save for the near future, for the need of the hour. और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी चीज को हम व्यर्थ ऐसे ही गवा दे, लेकिन आने वाली जो हमारी जो जरूरत है, उसके लिए हम उसको संभाल के रखें या बचा के रखें। Thank God, God patiently teaching me all these things. और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ये सारी चीजें सिखा रहा है। I like to share from Revelation 3:17. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 17 वचन से मैं कुछ बांटना चाहती हूँ। Because you say, I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. प्रकाशित वाक्य 3:17, तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। There is an expression, I don't need a thing. और यहाँ पर एक ऐसी अभिव्यक्ति है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। When I am focused on cleaning the outside, I will reach a place where I don't need a thing. और जब मैं केवल बाहरी तौर जो है, बाहरी मेरा हिस्सा, उसी को साफ करने के ऊपर अपना ध्यान लगाऊंगी, तब मैं ऐसी अवस्था में आ जाऊंगी जहां मुझे किसी चीज की घटी या कमी नहीं महसूस होती। Where people see me, all my work and everything, if I seek men's honor and praise, I can reach a stage like this. I don't need a thing. और जब मैं बाहर से अपने कामों को शायद मैं लोगों को दिखा सकती हूँ, तो ऐसे स्थान पर मैं पहुंच जाऊंगी उनको दिखावे बाहर से करते हुए कि जहां मुझे किसी चीज की कमी या घटी नहीं है। Like the Pharisee who couldn't see any need of himself, but he could see the need of the tax collector. और हम उस फरीसी के समान बन जाते जो अपनी स्वयं की जरूरत को नहीं देख पाए, लेकिन वो चुंगी लेने वाला, जो कर लेने वाला, जो वहां प्रार्थना, उसकी जरूरत को देख रहा है। But if I am really interested in my cleaning my inside, I can see how wretched I am, like these words, how wretched and miserable and poor and blind and naked. लेकिन जब मैं यदि अपने स्वयं के भीतर देख पाऊंगी या जांच पाऊंगी, तब मैं इस यहाँ पर जो लिखा है कि मैं देख पाऊंगी कि मैं कितनी अभागी, तुच्छ, कंगाल, अंधी हूँ। Till my last day of my life, I will be able, God will be able to show me in some area I am miserable, some area I am wretched, some area I am poor, some area I am naked. मेरे जीवन के अंतिम दिन के अंदर यीशु मसीह परमेश्वर मुझे ये दिखा पाएगा कि किन किन क्षेत्रों के अंदर मैं अभागी हूँ, तुच्छ या कंगाल या अंधी हूँ। So then God's advice, if I am really interested in cleaning my inside, God's advice is to me is, I advise you to buy from me gold refined by fire. और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की सलाह, यदि हम मैं अपने आप को भीतर से साफ करना चाहती हूँ, तो 18 वचन में यहाँ पे लिखा है कि वो सम्मति हमको देता है कि मुझसे ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। Verse 18, so that you may become rich. और यहाँ पे लिखा है ताकि तू धनी हो जाए। So if there I have a little gold in my in my life, I will not be rich. और यदि मेरे पास थोड़ा ही ऐसा सोना है, तो मैं बहुत धनी नहीं बन पाऊंगी। We can see a little gold many people have, but they are not rich. और हम देखते हैं कि थोड़ा सा सोना तो हर किसी के पास होता है, लेकिन वो धनवान नहीं कहलाए जाते उतने सोने से। This gold is actually the life of Jesus. और यहाँ पर सोना जो है वो यीशु मसीह के जीवन को प्रदर्शित करता है। It's the divine nature. और एक दिव्य स्वभाव जो है। If I want to become rich, I need to go ask this. I have to buy this gold from God.
और यदि मुझे धनवान या धनी होना है तो मुझे परमेश्वर से ये सोना मांगना है। So this gold, I won't get it very easily. और ये सोना मुझे बड़ी आसानी से नहीं मिल जाएगा, It is purified by fire. लेकिन ये जो है वो आग के द्वारा उसको ताया जाता है या शुद्ध किया जाता है। So when I am asking God, Lord, I want to be like you, I am asking for this gold. और जब मैं ये परमेश्वर से कहती हूँ कि प्रभु मैं तेरे समान बनना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं उससे ये सोना मांग रही हूँ। So God cannot give it me like that, but God will make me to go through the fire. और परमेश्वर मुझे ऐसे ही ये सोना नहीं देगा, पर उस अग्नि की भट्टी से मुझे जाने की अनुमति वो देगा। So God will allow situations in my life to purify myself. और परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियों की अनुमति देगा जिससे कि वो मुझको और शुद्ध और सोने के समान मुझे ता सके। So I have to completely surrender my life to go through that process. और मुझे पूरी रीति से उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए मुझे परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। Then I will get that gold in my life. और तभी वो सोना जो मेरे जीवन के अंदर मुझे प्राप्त होगा। I like to read that Revelation 3:19 from Message Bible. और मैसेज अनुवाद से मैं 3 उसका 90. पढ़ना चाहता हूँ। So that they will live at their best, run after God. और वहाँ लिखा है कि So they will live at their best. और वो अपने जो सर्वोत्तम होगा उसके साथ वो जिएंगे। Run after God. वो अपना सर्वोत्तम छोड़कर परमेश्वर के पीछे भागेंगे। So that's when I am asking this Jesus nature, God loves me so much, and He will make me to live my best and run after God. और ये इस प्रकार सोना मांगना, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कार्य करेगा जिससे कि मैं अपना सर्वोत्तम छोड़कर त्याग कर परमेश्वर के पीछे मैं चलूं या उसको पकड़ूं। आमीन।